Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? Can you tell me my first question of the morning starts with you? Why we need education in life? Why do you want to acquire education? Why do you want to earn education? Yes, please. In this time, the education is very important for a human in living in this world. Without education, the people will not tell us. The people will not tell us this is a educated person. Sit down. Very good. You tried. Anybody who would like to answer this question? Why do you want to acquire knowledge in your life? Yes, Lakshmi Tiwari. सर क्योंकि जिंदगी को जीने का तरीका एजुकेशन से ही आता है। You have to tell this in English. My question in English, your answer should be in English. If I ask you in Hindi, then you have to answer in English. Because sir, the way of living life comes from the education. Sit down. Anybody who wants to try? Yes, please. In bad condition, education is very important. We want to tell to use the right way. Yes, very good. Means education teaches us what is right and what is wrong. And we want to take or we want to acquire this kind of quality that is known as education because it helps us in life to discern what is right and what is wrong. Take your seat. Now what are the 5 words I gave you yesterday? Are you ready for that? So first of all, I welcome you all in the study of the day. That is Tuesday today. You are right or not? तो आज की सीख में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और पूर्णा वंदन है. So are you ready for that? So what is the first word? Visionary educationist. Vivek Kumar, what do you mean by visionary educationist? Take your seat. Next word. A man of immense pleasure. Priya. A man of immense pleasure. Now who would answer this? Shivam Yaki, please. बहुत खुशहाल व्यक्ति. A man of immense pleasure. Take your seat. Next word. Philanthropist. अंशिका तिवारी. What do you mean by philanthropist? समाज सेवी. Very good. Take your seat. What is the next word? Communication building. Radhika. Very good. Take your seat. Next word. Character building. सत्येन. कैरेक्टर बनाना मीन चरित्र बनाना. और चरित्र को बहुत खूबसूरत शब्द यानी करके खोजा है और उर्दू में उसको कहते हैं सीरत बनाना. बोले हम स्कूल को खूबसूरत नहीं बनाने आते हैं, हम कुछ स्कूल की खूबसूरत बनाने आते हैं और अपनी जिंदगी की खूबसूरत बनाने आते हैं. ठीक है. What's your next word? Finished. Sayings. Now Ayush Pranami, what is your saying today from the last day? Tell me a saying. You are absent or present? Time management. Time management. No, I'm talking about saying. A drop in the ocean. A drop in the ocean. What do you mean by it? If I say Ayush Pranami studies from July to January, and in spite of that, God forbid, Bhagwan ऐसा ना करे, if you achieve merely 2 marks in your board examination in English language, then it will suit you a drop in the ocean. Right or not? So such example you have. Take your seat. Next question. Next saying from Vedant Giri. A bad carpenter always quarrel with his tool. With his tools. What do you mean by it?
Take this. Write down the words of the day. 7 C's. 7 C's. Very valuable. जिंदगी में काम आने वाली 7 C अगर आपको याद है. Generally, student after doing their high school, doing their intermediate, doing their graduation, doing their universities, they learn 7 C's. सब कुछ करने के बाद इंग्लिश मीडियम जैसे इदारे में पढ़ने के बाद लोगों में 7 C की कमी महसूस होते हुए मैंने देखा है. तो 7 C's है, आप नोट कर लीजिए. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. लैक ऑफ कम्युनिकेशन. कभी कभी लोगों में वार्तालाप की कमी देखने को मिलती है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद. कम्युनिकेशन स्किल्स. सेकंड सी कैरेक्टर. लैक ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर बनाना है हमें अपने बोलचाल को सुधारना है, क्योंकि जो हम लिखते हैं या जो हम कहते हैं उसमें शक्ति निहित होती है, और वो शक्ति कहीं किसी दूसरे को बर्बाद ना कर दे, किसी को आपका दुश्मन ना बना दे. इसलिए बोलते समय आपको और कहते समय अपने शब्दों को समझदारी से प्रयोग करना है और समझदारी का प्रयोग करना है, क्योंकि उनमें शक्ति निहित होती है. सेकेंड है कंसिस्टेंसी. कोई काम कर रहे हो तो उसमें निरंतरता जरूर हो. कंसिस्टेंसी. 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 नेक्स्ट क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी. जिज्ञासु हो आप. क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी. आप जिज्ञासु जरूर हो. किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके अंदर एक कीन इंटरेस्ट होना चाहिए, जीनियस इंटरेस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट लिखिए कंपैशन. कंपैशन गुणों की खान. सबसे बड़ा इसमें यही है. कंपैशन मींस दया. आप अपने पे भी दिखाएं और दूसरे लोगों पे भी दिखाएं. कंपैशन. हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू डन? 5. सेकंड. नेक्स्ट गुड कंपनी. कंपनी, क्योंकि आप कैसे लोगों में रहते हो ये मायने रखता है. राइट डाउन द सेइंग ऑफ द डे. द कंपनी यू कीप. राइट डाउन सेइंग. एक कहावत भी लिख लीजिए. फिर लास्ट पॉइंट लिखा. द कंपनी यू कीप, द बुक यू रीड, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट. द कंपनी यू कीप, द बुक यू रीड, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट. आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, आप कैसे लोगों में रहते हैं, इससे आपका भविष्य तय हो जाता है. आप वही बन जाए. आप उन्हीं से निकले हुए एक ऊर्जा तत्व होते हैं, और आपका ऊर्जा तत्व सिर्फ शिक्षा होनी चाहिए और आप उसी से ऊर्जित हो. नेक्स्ट वन वर्ड राइट डाउन. culmination of success. Culmination of success with hard work. With hard work. Culmination. Culmination कहते हैं शिखर को, परिणाम को. सक्सेस या परिणाम. कल्मिनेशन शिखर को भी कहते हैं, इसके पैनिकल भी कहते हैं. राइट डाउन वन मोर से. A student has capacity. A student has a capacity to change the nation, to define the nation. A student has capacity to change the nation, to define the nation. So be very careful. So be very careful during your student life.
ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ। एक विद्यार्थी किसी भी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और वो किसी भी राष्ट्र को तहस नहस कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, दूषित कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में जब तक हैं आप बहुत सावधान रहें, क्योंकि देश का भविष्य आप पे ही होगा। इज दैट क्लियर? राइट डाउन द थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे। A man is known, K-N-O-W-N. Man is known by the company. A man is known by the company he gives. He gives. एक व्यक्ति के साथ बैठने से, बातचीत करने से पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर आपको किसी को जानना है तो 10 मिनट आप उसके साथ बैठ करके बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको वो आर्ट आनी चाहिए लोगों को पहचानने का, कि जब ये हमारे सामने बैठेंगे इनके एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे होंगे और ये एक्सप्रेशन किस चीज की निशानी होते हैं, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा उन किताबों को, उन व्यक्तियों को, तो आप आसानी से पता लगा सकते। राइट डाउन वर्ड ऑफ द डे। Be your own brand. Be your own OWN. Be your own brand. आप जो हैं और आप में जो कला है आप वही बनिए और अपनी दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट बनिए, सबसे शानदार ब्रांड, कि आपकी बोली लगाने वाला भी इस दुनिया में पैदा ना हो। आप अपनी इच्छा से कहें कि हमें ये करना है। Now today we will discuss about how to tell while learning. Five words, write down. Ambassador of. Be ambassador of your journey. अपनी यात्रा का राजदूत स्वयं करें। Be ambassador of your journey. Be ambassador of your journey. Second word, logical and humble opinion. तार्किक और विनम्र विचार। तार्किक और विनम्र विचार। वर्ड नंबर 3, अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य। नेक्स्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, जिसको कहते हैं पारस्परिक समझ, आपसी समझ। वन मोर वर्ड, बुके ऑफ स्कूल। बुके ऑफ स्कूल, सच कहूं तो आप इस स्कूल के गुलदस्ते है ना, इस तरीके से लोग बोलते हैं। बुके ऑफ स्कूल। अ मैन ऑफ माउंटेन। अ मैन ऑफ माउंटेन, जब किसी की बहुत प्रशंसा करनी हो, सचिन तेंदुलकर आपके बगल में खड़े हो और आपसे कोई पूछे कि सचिन तेंदुलकर कौन है, तब आप बोल सकते हैं आई कांट से एनीथिंग, ही इज अ मैन ऑफ माउंटेन। इनके बारे में क्या कहें, तो स्वयं शिखर है, इनके बारे में कुछ नहीं।